Find the area of the region bounded by the curve y square is equal to x. तो देखिए बच्चों, y square is equal to x. This is the equation of parabola whose vertex is origin and which is opening on the right hand side. And the lines x is equal to 1. Suppose this is a line x is equal to 1. That means it is intersecting at point 1. It is x is equal to 4. तो यहाँ पर 4 आएगा. And x axis. And the x axis. तो हम लोगों को we have to find the area of the region bounded by the curves y square is equal to x is equal to 1, x is equal to 4 and x axis. That means this will be the required area. तो देखिए बच्चों, let us calculate required area. Required area is equal to integral from 1 to 4 y dx लिखना है. Differentiating means finding area along x axis. That means y dx निकालना है आपको. तो y square is equal to x है, तो y is equal to ये root x हो जाएगा. So this is 1 by 4 into integral from 1 to 4 y means root x dx आ जाएगा. तो इसका इंटीग्रेशन है बच्चों x raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1. So 4 to 1. तो देखिए बच्चों 1 by 2 plus 1 means ये 3 by 2 आएगा. Right? 3 by 2 in bracket x raised to 3 by 2 और ये upper limit 4 lower limit 1. So this is equal to 3 by 2 into, देखिए बच्चों ये अपर लिमिट यहाँ रखते 4 मीन्स यहाँ 4 रेज टू 3 by 2 माइनस 1 रेज टू 3 by 2 आएगा. So this is equal to 3 by 2 into 4 raised to 3 by 2 means 2 square raised to 3 by 2. 2 will get cancelled. So this will be 8 minus 1 आएगा बच्चों. तो ये 2 by 3 हो जाएगा बच्चों. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 by 3 या 2 by 3 आएगा ये. 2 by 3. So this will be 14 upon 3 square units. Bounded by y square is equal to 9x. Suppose this is the y square is equal to 9x. ठीक है. x is equal to 2. Suppose this is a line. This is x is equal to 2. x is equal to 4. ये second line is x is equal to 4. तो this is x is equal to 2. तो यहाँ 2 आएगा बच्चों और यहाँ पे 4. एंड द x एक्सिस ऐसा बोला है. बोले तो ये x एक्सिस, ये दो लाइंस और ये जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इसके बीच में का एरिया निकालना है. तो व्हाट विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया बच्चों? इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 4. ये जो ब्लू कलर से हमने जो स्काई ब्लू से शेड किया बच्चों, दैट एरिया इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो यहाँ हम लोगों को y dx लेना है. तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं. y इज इक्वल टू 3 रूट x आ जाएगा. So this is equal to integral from 2 to 4 3 root x dx. So this can be written as 3 in bracket. इसका इंटीग्रेशन है बच्चों 2 by 3 x raised to 3 by 2 और यहाँ 4 to 2 आएगा. So 3 times 2 by 3 into, देखिए बच्चों 4 raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2. देखिए बच्चों इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं. 4 raised to 3 by 2 means this is 2 square, or I can write this as 4 raised to 3 by 2 means 4 raised to 1 by 2 bracket cube.
तो इसका स्क्वायर रूट 2 ये आएगा, फिर 2 रेज टू 3/2 मीन्स 2 रेज टू 1/2 ब्रैकेट की, तो √2 इंटू √2 इंटू √2 मीन्स ये 2√2 आएगा बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2/3, 8 माइनस ये कैंसिल हो जाएगा 3 तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, और दिस इज फाइनलाइजिंग 2 इन ब्रैकेट 8 माइनस 2√2 square units. So let us see one more important question bachcho. So let us understand first question. Find the area of the region bounded by x square is equal to 4y. देखिए बच्चों, this is again equation of parabola which is opening on the upper side and whose vertex is origin. Suppose this is x axis, this is y axis. Y is equal to 2 line. Y is equal to 2 line. This is a line which is parallel to x axis and intersecting y axis at 2. Y is equal to 4. This is a line parallel to x axis intersecting y axis at 4. Okay. And the y axis in the first quadrant ऐसा दिया है, तो ये y axis, ये y is equal to 2, y is equal to 4 and x square is equal to 4y. So this is the area, yellow color area is the required area which is in the first quadrant, we can say that. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे required area में लिखना, required area is equal to integral from 2 to 4. We are integrating along y axis, तो इसको लिखना है बच्चों x dy. तो x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, x square is equal to 4y, तो x is equal to 2 times root y. So this is equal to integral from 2 to 4, यहाँ 2 लिख देता हूँ बच्चों, 2 times ये root y dy. So let us write its integration. 2 times integration of root y is 2/3 y raised to 3/2, और ये हमारे इंटीग्रल्स क्या है, अपर लिमिट इज 4 and lower limit is 2. So this can be written at 2 times 2/3 4 raised to 3/2 minus 2 raised to 3/2 आएगा. So I can write this as 4/3 लिख दीजिए बच्चों, ये 4/3. So 4 raised to 3/2 means it is 8 आ रहा है बच्चों, माइनस, और ये 2 raised to 1/2 का क्यूब मीन्स 2 raised to 2√2 आएगा ये. So this can be written as बच्चों 32 minus 8/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 3 square units. Let us solve this question बच्चों. तो x square upon 16 plus y square upon 9 is equal to 1. This is the equation of horizontal ellipse. Okay, 0, यहाँ ये लिखेंगे और यहाँ b लिखेंगे, c और ये d है. ठीक है, तो ये के कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों 4,0, क्योंकि ये 0, दिस इज ये x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 है, बराबर. तो b के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,3. अब ये पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स है बच्चों, तो एक का एरिया निकालेंगे 4 टाइम्स
0 to 4 में इंटीग्रेट करेंगे, 0 to 4, और ये जो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स y dx लिखेंगे और y की वैल्यू यहां से निकालेंगे। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू y square upon 9 is equal to 1 minus x square upon 16. Y square is equal to 9 into 16 minus x square upon 16 आएगा। तो this is y is equal to 3 upon 4 into इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो अंडर स्क्वायर रूट 16 minus x square. So I can write this as 4 into integral from 0 to 4, y means what? 3 by 4 under square root 16 minus x square dx आएगा. This 4 will get cancelled. So I can write this 3 times 0 to 4 under square root 4 square minus x square dx आएगा. तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स देखा है. दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी है. नाउ लेट अस राइट इट्स इंटीग्रेशन. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स तो एक्स बाई 2 into under square root 16 minus x square plus a square upon 2 16 upon 2 sin inverse of x upon a. A means a 4 आएगा, which 0 to 4 आएगा. So this can be written as 3 times put upper limit. So 4 upon 2 16 minus 16 plus 8 into sin inverse of 4 upon 4 minus, देखिए बच्चों 0 into this 0 plus sin inverse of 0 is 0, तो ये माइनस आ जाएगा. So this is equal to 3 times, देखिए बच्चों ये 0 हो रहा है, 16 minus 16 0, so plus 8 into this is 1, sin inverse of 1 means 5 by 2 है, 2 1s are 8, 2 4s are. So this is equal to 12 pi square units. So this is our. Find the area of the region bounded by the ellipse x square upon 4 plus y square upon. देखिए बच्चों, denominator of x square is less than denominator of y square. So therefore it is vertical ellipse. So therefore suppose this is O, यहाँ पे ये है बच्चों, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बच्चों? दिस इज 2, 0 और अगेन यहाँ पे 0, 3 आएगा. नाउ हम लोगों को क्या करना है? पूरा एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स निकालना है. सो आई कैन राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया. आई कैन से दैट रिक्वायर्ड एरिया. अगेन यहाँ पर ये जो 4 पार्ट्स है बच्चों, ये these 4 parts are equal. क्यों इक्वल है? बिकॉज an ellipse is symmetric about the x-axis and y-axis. So required area I can write is equal to 4 times integral from 0 to 2. देखिए 0 to 2 y into dx लिखेंगे. Again we can find value of y here. So y square upon 9 is equal to 1 minus x square upon 4 आएगा बच्चों. This is 4 minus x square upon 4. So y square is equal to 9 upon 4 into 4 minus x square है बच्चों. तो y is equal to 3 by 2 into under square root 4 minus x square आएगा. So this can be written as 4 into, देखिए बच्चों ये 3 by 2 मैं बाहर ले रहा हूँ, 3 by 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 y मीन्स क्या है? अंडर स्क्वायर रूट
4 minus x square dx आएगा. So we can write here 2 1s are 2 2s are. So I can write 6 times. देखिए बच्चों वही फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग. कौन सा फार्मूला यूज करें? इंटीग्रल ऑफ अंडर स्क्वायर रूट a square minus x square dx is equal to x by 2 under square root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse of x by a plus c. अब ये डेफिनाइट इंटीग्रल है तो इसको हम लोगों को c लेने की जरूरत नहीं है. तो दिस विल बी व्हाट x by 2 under square root 4 minus x square plus a square upon 2 means 4 upon 2 into sin inverse of x by a. a means 2 आएगा बच्चों यहाँ 0 to 2 बोल सकते हैं हम. So this can be written as बच्चों 6 times x upon 2 into 4 minus x square. चलिए बच्चों इसमें हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. So this is equal to 6 times. देखिए बच्चों ये 2 upon 2 under square root 4 minus 4 हो जाएगा plus 2 times sin inverse of 2 upon 2 minus. देखिए again this will be 0. sin inverse of 0 is 0. तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है. 0 लिख दीजिएगा minus. So this is 6 times. This will get cancelled. ये 0 आएगा बच्चों plus 2 into sin inverse of 2 upon 2 means 1 and 1 means it is 5 by 2 आएगा. This 2 will get cancelled. Our answer will be 6 pi square units. Find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis. This is x-axis. Line x is equal to root 3y. देखिए बच्चों this can be written as y is equal to 1 upon root 3 x. So देखिए बच्चों यहाँ पर y is equal to mx ये जो लाइन होती है और y is equal to minus mx ये जो लाइन होती है. y is equal to mx is a line passing through first quadrant, third quadrant and origin. And this is y is equal to minus mx is a line. It will pass through second quadrant and second quadrant origin and fourth quadrant. Right? So this is y is equal to 1 upon root 3 x हो जाएगा. अब इसके बाद में हम लोगों को क्या दिया है बच्चों? We have to calculate the area of the region bounded by this line. This circle in the first quadrant में निकालना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोले तो बच्चों ये हमको एरिया निकालना पड़ेगा. दिस इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व्स. वी कैन से दैट दिस इज गिवन कर्व्स. ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है और ये जो है बच्चों दिस इज द सर्कल. वी कैन से दैट. अभी इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, या हम लोग क्या करने वाले हैं? तो हम लोग यहां पर देखिए बच्चों ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3x को इंटीग्रेट करेंगे. कौन से इंटरवल में? इस इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे. यहाँ इस इंटरवल यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ तक का एरिया इस that if we integrate this line that means that will be the area of this triangle. बराबर है. और उसके बाद में यहां से यहां तक ये सर्कल के एरिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. सर्कल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मिलेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये एक का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे बोले तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा. सो हाउ टू कैलकुलेट दैट एक्स कोऑर्डिनेट? लेट अस सी हियर. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/√3x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4x स्क्वायर अपॉन 3 is equal to 4. So this 4 will get cancelled. 1 x square is equal to 3, x is equal to √3 आ जाएगा प्लस 1। अभी हम लोगों को क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, so we will get this as √3 आएगा, राइट। तो ये √3 हम लोगों को इंटरवल्स मिल गए जिस इंटरवल में कर्व्स को इंटीग्रेट करना है। तो आई कैन राइट हियर बच्चों रिक्वायर्ड एरिया कैसा आएगा, ध्यान दीजिए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू √3, 0 टू √3, ये लाइन को इंटीग्रेट करना है, 1/√3 x dx प्लस √3 टू इसकी जो रेडियस है बच्चों, दिस इज 4 है, इसका मतलब इसके रेडियस 2 आएगा, 2,0। तो √3 टू 2, और ये जो इक्वेशन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अंडर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, y की वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगी। सो लेट अस इंटीग्रेट नाउ, सो आई कैन राइट 1/√3 x का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2 √3 0 प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, x/2 अंडर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो देखिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते, वैल्यूज रखते थे √3 इंटू, तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 3/2 माइनस 0 मीन्स ये 3/2 आएगा, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस देखिए बच्चों ये 2 रख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2/2 ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 प्लस 4/2 मीन्स 2, साइन इनवर्स ऑफ 2/2 मीन्स 1, इट इज 5/2 माइनस, अभी हम लोगों को ये √3 का रखना है, व्हाट विल बी दिस, दिस इज √3/2 अंडर स्क्वायर रूट 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा, प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 बराबर। सो दिस कैन बी रिटन एज बच्चों, आई कैन राइट दिस √3, इसको कैंसिल कर राइट, तो ये आ जाएगा बच्चों √3/2 प्लस, अब ये क्या आ रहा है देखिए बच्चों, दिस विल गेट कैंसिल, ध्यान दीजिए 5 माइनस √3/2 आएगा बच्चों, दिस इज √3/2 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या आ रहा है बच्चों, √3/2 मीन्स दैट विल बी π/3 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके, तो √3/2 प्लस 5 माइनस √3/2 प्लस 2π/3, देखिए बच्चों ये कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी पाई प्लस 2π/3 is 3π plus 2π, 5π/3 square units.
देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सो 3 पाई माइनस 2 पाई, सो इट विल बी पाई बाई 3 आएगा बच्चों, पाई बाई 3 स्क्वायर। Dear students, let us solve one more important question. Find the area of the smaller part of the circle x square plus y square is equal to a square cut off by the line x is equal to a upon root 2. तो देखिए बच्चों, x square plus y square is equal to a square. This is the circle whose center is origin and radius is a. So you can say here a is ये कॉमन जीरो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद में x is equal to a upon root 2. This is x is equal to constant means that is a line parallel to y-axis. Suppose this is a line parallel to y-axis. Its equation is x is equal to a upon root. That means this line cuts x-axis at a upon root 2. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम लोगों को एरिया फाइंड करना है स्मॉलर पार्ट of the circle cut off by, देखिए ये if this line cuts this circle it makes two parts. ये देखिए ये छोटा पार्ट और ये बाकी का ये बड़ा पार्ट है। तो हम लोगों को we have to find the area of this smaller part. तो स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बच्चों, we have to calculate this area. ये एरिया हमको कैलकुलेट करना, ये एरिया हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी देखिए बच्चों, ये सिमेट्रिकल, दिस सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सर्कल को जो है बच्चों, ये सर्कल को यहां से यहां तक इंटरवल में इंटीग्रेट करके उसका 2 टाइम्स करेंगे तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया। सो लेट अस राइट हियर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम a अपॉन रूट 2 इंटू ये अपर लिमिट और y dx बोल सकते हैं। सो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम a अपॉन रूट 2 टू ये, तो y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों, तो इट विल बी अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका तो हमें इंटीग्रेशन मालूम है बच्चों, व्हाट इज इंटीग्रेशन, x अपॉन 2 अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ये लोअर लिमिट a अपॉन रूट 2 और अपर लिमिट ये हो जाएगा। सो लेट अस कैलकुलेट इट्स वैल्यू बच्चों। देखिए दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अपर लिमिट क्या मैं लिखता हूं बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 प्लस a square upon 2 sin inverse of a upon a is 1, so it is pi by 2 आएगा बच्चों। अब माइनस ये लोअर लिमिट रखना है, so let us put lower limit, तो it will be a upon 2 root 2, x के बदले में मैं a upon root 2 लिख रहा हूँ बच्चों, into अंडर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, ये स्क्वायर अपॉन 2 आएगा प्लस ये स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ दैट विल बी ये अपॉन रूट 2 आएगा। x मीन्स 1 minute before I committed mistake, x means what, ये अपॉन रूट 2 अपॉन ये है बच्चों, बराबर है। तो दिस ये कैन बी कैंसल्ड विद दिस, सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए बच्चों, 2 टाइम्स, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस
देखिए बच्चों, तो ये अपॉन 2√2 इंटू, देखिए 2a² माइनस a², तो ये स्क्वायर अपॉन 2, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा बच्चों ये अपॉन √2 निकलेगा, प्लस ये स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2 मीन्स ये पाई बाय 4 हो जाएगा। So let us write here bachcho 2 times a square pi upon 4 minus से multiply करें, देखिए बच्चों ये this will be a square upon 2, ये 4 आ जाएगा, ये माइनस a square upon 2 into 4 8 pi आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 2 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2a² पाई माइनस a² पाई, क्या एलसीएम 8 आएगा, तो ये स्क्वायर पाई अपॉन 8 आएगा माइनस ये स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। तो इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, a² अपॉन 4 कॉमन निकाल लीजिए, तो इट विल बी पाई बाय 2 माइनस 1, ये 2 इसके साथ कैंसिल, so a² अपॉन 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1 square it. So let us calculate one more important example. Let us understand this question. The area between x is equal to y², that means y² is equal to x actually. That means y is equal to √x. Y² is equal to x is the equation of parabola which is opening on the right hand side and whose vertex is origin. तो देखिए बच्चों, the area between x is equal to y² and x is equal to 4. So suppose this is a line, x is equal to 4. That means यहाँ पे 4 आएगा. It is divided into, बोले तो which area, देखिए बच्चों ये area enclosed by this parabola and this line, कौन सा एरिया हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान दीजिए, ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया जो है, this area is divided into 2 equal parts by this line, x is equal to a, this is dividing, so we have to find the value of a. तो देखिए बच्चों हम लोग पहले क्या करेंगे, we will find out this area a o b o, ठीक है, ये एरिया a o b ये, what will be that area, that is इंटीग्रल फ्रॉम, देखिए बच्चों यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा, इसको 2 टाइम्स कर देंगे, 2 टाइम्स √x dx, y dx मीन्स, और 0 to 4 आएगा, so this is equal to 2 टाइम्स बच्चों ये 2/3 into x raised to 3/2 है, √x का इंटीग्रेशन है बच्चों 2/3 into x raised to 3/2. This is 4 और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 है, ये 0, so 2 into x 4 raised to 3/2,
4^3/2 मीन्स ये क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट का क्यूब निकालना है बोले तो ये आएगा, दिस इज 8 माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 8 to the 16, it will be 32/3 square units। इसके बाद में ये एरिया निकालेंगे बच्चों, ए बी सी और डी। एरिया CODC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये एरिया 2 टाइम्स यहाँ ये है 0 to a, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज √x dx is equal to 2 times 2/3 x raised to 3/2 0 to ये हो जाए। देखिए बच्चों 2 into 2/3 into a raised to 3/2 आएगा। This is equal to 4/3 into a raised to 3/2। अब ये जो एरिया है वो दो एरिया, तो by given condition these two areas are equal, that means ये जो एरिया है तो this 32/3 is 2 times of 4/3 a raised to 3/2, क्योंकि ये एरिया इक्वल है। So we can write this 3 can be cancelled बच्चों, तो 4 is equal to 2 4s are 8 और ये 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये raised to 3/2 बच्चों। Witness ये is equal to 4 raised to 3/2, ये is equal to 4 raised to 3/2। This is our. Now to find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square। तो देखिए बच्चों दिस इज ए पैराबोला, ये पैराबोला है बच्चों, विच इज ओपनिंग ऑन द अपर साइड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जिसका वर्टेक्स है बच्चों ये ओरिजिन है, ठीक। उसके बाद में एंड y इज इक्वल टू मॉड x, y इज इक्वल टू मॉड, को भी जो एरिया निकालना है बच्चों, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू मॉड x बोले तो ये एरिया आ जाएगा बच्चों, बराबर है, और उसके बाद में ये एरिया आएगा। अब यहां पर देखिए बच्चों ये एरिया सेम, क्योंकि ये सिमेट्रिकल, दैट मींस पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है यहाँ पे। तो हम लोगों को एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और ये लाइन को इंटीग्रेट करेंगे, तो लाइन को इंटीग्रेट करने के बाद में ये एरिया आएगा बच्चों, इसके नीचे ऐसा परपेंडिकुलर देंगे और उसमें से ये पैराबोला का एरिया माइनस करेंगे, तो ये जो येलो स्ट्रिप्स दिख रहे हैं वो एरिया आएगा। सो आई कैन राइट दिस एज, देखिए ये के कोऑर्डिनेट निकालते हैं पहले बच्चों, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स है, ये दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो ये तो पॉसिबल नहीं, तो यहाँ पे 1 आएगा बच्चों, 1 दैट मीन्स ये 1 आ जाएगा 1, तो ये दूसरा पॉइंट लेने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए रिक्वायर्ड एरिया, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स
ये डबल, इसका डबल एरिया करेंगे। 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1, ये लाइन x dx माइनस इसके एरिया, ये माइनस एरिया करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा बच्चों, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x dx, ये हो जाएगा हमारा। सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, इसका एरिया है बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1 माइनस x क्यूब अपॉन 3, 0 to 1. So this is equal to 2 times 1 by 2 आएगा, अपर लिमिट माइनस, ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 by 3 है, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 2 into 3 minus 2 upon 6 आएगा। So this is equal to 2 into 1 upon 6, that means this is equal to 1 by 3 square. So let us calculate one more question बच्चों। Find the area bounded by the curve x square is equal to 4y. तो x square is equal to 4y, ये इक्वेशन हो गया बच्चों इस पैराबोला का। और सपोज दिस इज ए लाइन x is equal to 4y minus 2। तो देखिए बच्चों यहां पर x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू y है, और ये जो है x प्लस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू y। अब यहां पर ये दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बच्चों हम लोग। तो x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 4 आएगा। दिस विल गेट कैंसिल्ड बच्चों। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर आ रहे x माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 1। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है बच्चों, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये -1, 0 आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पर जो पॉइंट है बच्चों ये दिस विल बी 2, 0, क्योंकि माइनस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है और प्लस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको बी बोलेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, हमको ये दो कर्व के बीच में का एरिया, ये एरिया निकालना है। So this area we have to calculate. So that is equal to integration from -1 to 2, इस लाइन का इक्वेशन। That means x plus 2 dx, ये 1/4 आएगा। तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये I1 कैलकुलेट करेंगे। So let us calculate this 1/4। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x, 2 और ये -1। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू, तो ये इसको रखिए बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन 2 मीन्स 2 प्लस ये 4 हो जाएगा। अब ये माइनस रखिए, तो माइनस ये 1/2 माइनस 1 रखिए, ये 2 हो जाएगा। So this is equal to 1/4 into 6 plus 3/2 आएगा बच्चों ये। This is 1 by ये -3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। So this is equal to 1/4 into ये 15 अपॉन 2, that is 15 अपॉन 8 आ जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग I2 निकालेंगे बच्चों। हमने we have calculated
area of this quadrilateral, we can say that ABCD. I1 means what is this? ABCD एरिया है, ठीक है। अब I2 बोले तो क्या है, देखिए बच्चों, एरिया ये बी, देखिए ये भी नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, ये वो बी, ये देखिए ये वो बी, सी ओ डी, सी ओ डी, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2, इसका एरिया निकालना है। तो ये है बच्चों x² है ये, तो 1/4 dx² dx आ जाएगा। तो 1/4 इंटू 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर आएगा बच्चों 4 -1, so this is equal to 3/4 आएगा बच्चों, राइट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज I1 minus I2 आएगा। so what is I1, एक मिनट बच्चों, यहाँ मिस्टेक हो गया फिर से, देखिए 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x³ / 3 -1 2, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 8/3 -1/3 आएगा, 8/3 माइनस, इसका माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा, तो व्हाट विल बी दिस 1/4 इंटू 9/3 आएगा ये बच्चे। सो व्हाट इज अवर I1, 1/4 इंटू 15/2 माइनस 1/4 इंटू 15/2 माइनस 3, 1/4 इंटू 15 माइनस 6/2, तो ये 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। So let us calculate one more question बच्चों। So find the area of the region bounded by the curve y² is equal to 4x है बच्चों। So this is the equation of parabola है बच्चों। So y² is equal to 4x and line x is equal to 3. Suppose this is a line, x is equal to 3 means a line parallel to y-axis. This is x-axis and this is y-axis. So call this as O. तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ये विल बी 3,0। अभी देखिए बच्चों, हम लोगों को एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स निकालना है, मतलब ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा हमको, ये पूरा एरिया निकालना है, ये सभी हमको एरिया निकालना है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, यहाँ call this as B. What is required area बच्चों, required area means ये these two parts are equal. Why? Because parabola is symmetric about x-axis. This is equal to 2 times 0 to 3 में इंटीग्रेट करेंगे बच्चों ये इसको, तो y² is equal to 4x means y is equal to 2√x आएगा, ये y dx आएगा। So 2 into 0 to 3 y means what, 2√x dx आएगा। So this is equal to 2 times
ये 2 इधर ले लेंगे बच्चों, और इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इज 2/3 इंटू x raised to 3/2, 0 to 3 आएगा ये. So this is 4 times 2/3 इंटू, इसमें लिखेंगे बच्चों 3 raised to 3/2 minus 3/8. So 8/3 इंटू, देखिए बच्चों यहाँ पे 3 raised to 3/2 का मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3 इंटू √3, इट विल बी 3√3 आएगा. So 8√3 square units आएगा. Area lying in the first quadrant and bounded by the circle x square plus y square is equal to 4 है बच्चों. That means radius of this is a circle whose center is origin. देखिए बच्चों, line, what we have to calculate, the x is equal to 0. That means this is equation of y is x is equal to 0 है बच्चों. x is equal to 2. अभी यहाँ पे 2 आएगा बच्चों यहाँ पे. So suppose this is a line pass, this is x is equal to 2 line. Huh? That means this coordinate of point, this A will be 2, 0. Now we have to calculate, that means area of the region bounded by this x is equal to 2, y is equal to 0, x is equal to 0 in the first quadrant. तो देखिए बच्चों, ये जो एरिया है, area of the region bounded by the curve, this circle, x is equal to 0, x is equal to 2 in the first quadrant. That means we have to calculate this area. ये area आएगा, right? So we will integrate this circle in this interval 0 to 2. So I can write required area is equal to 0 to 2 y dy dx बच्चों. तो ये क्या आ जाएगा, y is equal to under square root 4 minus x square आएगा बच्चों यहाँ से. So this is equal to 0 to 2 under square root 2 square minus x square dx. तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ a square minus x square dx, that is equal to x by 2 under square root a square minus x square plus a square upon 2 sin inverse of x upon a plus c. ये डेफिनाइट इंटीग्रल है तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा. So what will be its integration बच्चों, I can write this as x upon 2 into under square root 2 square minus x square plus a square upon 2 is 2 square upon 2 into sin inverse of x by a. A means 2 है, 0 to 2 आएगा. So let us calculate its, put upper limit here बच्चों. तो 2 upon 2 means 1, 2 का square 4, 4 minus 2 का square 4, 0 आएगा. तो 4 upon means 2 into sin inverse of 1. This is equal to बच्चों 2 into sin inverse of 1 means pi by 2. So 2 will get cancelled और एक pi. So pi will be our answer. देखिए बच्चों, area of the region bounded by the curve y square is equal to x. देखिए this is the equation of, this is y square is equal to 4x, right? And the line y is equal to 3. Suppose this is a line, this is y is equal to 3.
So we have to find the area between these two curves. So area between these two curves बच्चों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको रिक्वायर्ड एरिया में इंटीग्रल फ्रॉम ये 0 to 3 लेंगे, x dy आएगा बच्चों, बराबर। सो दिस इज इक्वल टू 0 to 3, x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू y² अपॉन 4 आएगा, तो 1/4 y² dy आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू ये आएगा बच्चों y³ अपॉन 3, इसका इंटीग्रेशन 0 to 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 का क्यूब क्या आएगा बच्चों, 27 अपॉन 3 माइनस 0 आ जाएगा। सो 3 1 जा 3 9 आएगा बच्चों। सो दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 4 आएगा बच्चों, 9 अपॉन 4 स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी आवर